ખેતીવાડીના ઉત્કર્ષ માટે સરકારે કેન્દ્ર સરકારે ટેકાના ભાવની યોજના અમલમાં મૂકી છે। સિઝનની શરૂઆત પહેલા ખેડૂતો વાવેતર કરે એ પહેલા જે તે સિઝનમાં જે વાવેતર થવાનું છે એ પાકોના ટેકાના ભાવો કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અગાઉથી જ નક્કી કરવામાં આવે છે અને જેવો માલ ખેડૂતોનો ઉત્પાદિત માલ બજારમાં આવે કે તુરત જ ટેકાના ભાવે એની પૂરતા પ્રમાણમાં પારદર્શી રીતે ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે, જેનાથી ખેડૂતોને પોતાના માલના વેચાણમાં આર્થિક નુકસાની ન આવે। ખેડૂત ભાઈઓ, મગફળી, કપાસ, તુવેર, ચણાની વાત કરીએ તો મગફળીના ટેકાના ભાવ 2015-16માં રૂપિયા ક્વિન્ટલે 4030 હતા, એમાં 80% વધારો કરીને 2025-26માં 7263 રૂપિયા કરવામાં આવ્યા છે। લંબત્રી કપાસના તાર પાકના ટેકાના ભાવ 15-16માં રૂપિયા 4100 હતા, એમાં 97% વધારો કરી 2025-26માં 8110 રૂપિયા કરવામાં આવ્યા છે। આ જ રીતે તમામ જણસીઓના ટેકાના ભાવના ખેતીના ઉત્પાદન ખર્ચમાં થયેલા વધારાને ઉત્પાદન ખર્ચના વધારાને ધ્યાને લઈ અને એના પ્રમાણમાં ટેકાના ભાવમાં પૂરતા પ્રમાણમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે। એટલું જ નહીં પણ આ વધારેલા ભાવે ટેકાના ભાવે આ યોજના હેઠળ ખરીદી પણ ખેડૂતો પાસેથી પૂરતા પ્રમાણમાં કરવામાં આવી અને અત્યાર સુધીમાં ટેકાના ભાવે 17 લાખ લાભાર્થી ખેડૂતો પાસેથી 41 લાખ મેટ્રિક ટનથી વધુ જથ્થાની રૂપિયા 26,000 કરોડથી વધુ રકમની ખરીદી કરવામાં આવેલ છે। ચાલુ વર્ષે રાજ્યમાં મગફળીના ટેકાના ભાવે રાજ્યમાં 209 ખરીદ કેન્દ્રો મારફત 3,67,743 ખેડૂતો પાસેથી રૂપિયા 8,295.40 કરોડના મૂલ્યની કુલ રૂપિયા 12,22,970 લાખ મેટ્રિક ટન મગફળીની વિક્રમજનક ખરીદી કરવામાં આવી છે। સોયાબીન પાકના 90 ખરીદ કેન્દ્રો મારફત 22,055 ખેડૂતો પાસેથી રૂપિયા 270.9 કરોડના મૂલ્યની કુલ રૂપિયા 55,210 મેટ્રિક ટન સોયાબીનની ખરીદી કરવામાં આવી છે। તુવેર પાકમાં 129 ખરીદ કેન્દ્રો મારફત 76,366 ખેડૂતો પાસેથી રૂપિયા 1181.35 કરોડના મૂલ્યની કુલ 1,56,480.20 લાખ મેટ્રિક ટન તુવેરની ખરીદી કરવામાં આવી છે। ચણા પાકમાં 151 ખરીદ કેન્દ્રો મારફત 95,107 ખેડૂતો પાસેથી રૂપિયા 850 કરોડના મૂલ્યની કુલ 15,04,51 મેટ્રિક ટન ચણાની ખરીદી કરવામાં આવી છે। આ રીતે રાયડો અને ઉનાળુ મગ સહિતના પાકોની ટેકાના ભાવે પૂરતા પ્રમાણમાં ખરીદી કરવામાં આવી છે, જેના કારણે ખેડૂતોને પોતાના જણસીઓના વેચાણમાં આર્થિક રીતે નુકસાન ન જાય અને ખેડૂતો આર્થિક રીતે એની આવકમાં સારો વધારો કરી શકે। આમ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા ખેડૂતના હિતમાં અનેકવિધ યોજનાઓ હાથ ધરવામાં આવી છે, જેના સારા પરિણામો પણ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। ખેડૂતોની સમૃદ્ધિ એ જ અમારી સરકારનો મુદ્રા લેખ છે। આ જ રીતે હંમેશા જગતના તાતની પડખે રહીને અમે આપ સૌના સહકારથી ગુજરાતની કૃષિને ઉન્નત કક્ષે લઈ જઈશું તેવો મને વિશ્વાસ છે। આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી હંમેશા દેશના ખેડૂતોની ચિંતા કરતા રહે છે। એ જ રીતે આપણા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પણ હંમેશા ખેડૂતોના હમદર્દ રહ્યા છે અને કોઈ પણ આપતી વખતે ખેડૂતોની પડખે ઊભા રહી અને સતત મદદરૂપ થઈ રહ્યા છે। એવા સંજોગોમાં આજે આ પીએમ કિસાન ઉત્સવ દિવસ નિમિત્તે રાજ્યના ખેડૂત ભાઈઓને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારના ખેડૂતોના ઉત્કર્ષ માટેના પ્રયાસો અને એની અનેકવિધ યોજનાઓનો લાભ લઈ આપણે દેશના ખેડૂતોને આર્થિક સમૃદ્ધ બનાવવા અને સુખી બનાવવા માટેના સરકારના જે પ્રયત્નો છે એમાં સહભાગી બનીએ, એ જ મારો આપ સૌને સંદેશો છે। આજના દિવસે આપણે બધાને સમગ્ર રાજ્યના કિસાનોને મળી અને મને ખૂબ આનંદ થયો
સૌનો આભાર. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. જય જવાન જય કિસાન. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય કૃષિ મંત્રી શ્રી આપના આ પ્રેરણાદાયી સંબોધન માટે. વિકાસ માટે વાવેલા બીજ ત્યારે જ પૂર્ણ રૂપે વિકસે જ્યારે તેને યોગ્ય વાતાવરણ મળે અને પરિશ્રમના પરસેવાથી સતત તેનું સિંચન કરવામાં આવે. રાજ્યની પ્રગતિના સૂત્રધાર તરીકે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી પણ વિકાસ માટે યોગ્ય વાતાવરણ ઊભું કરી પ્રજા કલ્યાણ માટે સતત પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છે અને તેનું જ પરિણામ છે કે રાજ્યના નાગરિકો તરીકે આપણે સૌ દરેક ક્ષેત્રમાં વિકાસના મીઠા ફળ મેળવી રહ્યા છે. વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાતના નિર્માણમાં અહર્નિશ સેવારત એવા ગુજરાત રાજ્યના પ્રજાવત્સલ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને આવો ખૂબ તાળીઓના આદર સાથે આવકારીએ આજના કાર્યક્રમમાં આપના બહુમૂલ્ય માર્ગદર્શન માટે. માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીના હસ્તે તેમની વર્ચ્યુઅલ ઉપસ્થિતિમાં પીએમ કિસાન ઉત્સવ દિવસ કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત ગાંધીનગર જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રીમતી શિલ્પાબેન પટેલ, ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના મેયર શ્રીમતી મીરાબેન પટેલ, મારા સાથી ધારાસભ્ય શ્રી રીટાબેન પટેલ, ગાંધીનગર જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ શ્રી અનિલભાઈ, ગાંધીનગર શહેર પ્રમુખ શ્રી આશીષભાઈ, કૃષિ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ શ્રીમતી અંજુ શર્માજી, શ્રી પ્રકાશ તિવારીજી, કાર્યકારી સદસ્ય અખિલ ભારતીય કિસાન સંઘ, રમેશભાઈ પટેલ, મહામંત્રી કિસાન સંઘ, સહકાર પશુપાલન ગૌ સંવર્ધન અને મત્સ્ય ઉદ્યોગ સચિવ શ્રી સંદીપ કુમાર, ગાંધીનગર તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રી મોહનસિંહ ઠાકોર, વિજય ખરાડીજી, કલેક્ટર શ્રી, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી, ખેતી નિયામક શ્રી, બગાયતની નિયામક શ્રી, વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી જોડાયેલા સૌ મારા સાથી મંત્રીશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, ઉપસ્થિત સૌ કિસાન ભાઈઓ બહેનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની ખેડૂતો પ્રત્યેની સંવેદના અને પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરતો આજનો આ અવસર છે. દેશના નાના અને સીમાંત કિસાનોને સિઝન પહેલા જ ઇનપુટ માટેનો ખર્ચ મળી રહે અને વ્યાજની ચુંગલમાં ફસાવવું ન પડે તેવા ખેડૂત હિતલક્ષી અભિગમથી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો કાર્યરત આજે કરવા જઈ રહ્યા છે. પીએમ કિસાન યોજના એ આજે દેશના કરોડો ખેડૂતોના જીવનમાં નવી આશા અને સુરક્ષાનો ભાવ જગાવ્યો છે. ઓગસ્ટ માસ તો ક્રાંતિનો મહિનો કહેવાય છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ દેશમાં કૃષિ અને કૃષિકારો માટે જે ક્રાંતિકારી પગલાં લીધા છે તેમાં વધુ એક ક્રાંતિકારી કદમનો આજનો આ અવસર છે. પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ આજે દુનિયાની સૌથી મોટી ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર સ્કીમ બની છે. આવી ન્યાયી અને પારદર્શી પદ્ધતિએ ખેડૂતોમાં વિશ્વાસ પેદા કર્યો છે. આ યોજના વડાપ્રધાનશ્રીના અંત્યોદય એટલે કે સમાજના અંતિમ માનવી સુધી 100% લાભ પહોંચાડવાના અભિગમનું જીવંત ઉદાહરણ છે. દેશના ખેડૂત પરિવારો માટે આર્થિક સહાયના આ પ્રેરણાદાયી કદમથી ખેડૂત કલ્યાણને વડાપ્રધાનશ્રીએ પ્રાથમિકતા આપી છે. જ્યારે સાચી નિયત હોય, સેવાની ભાવના હોય તો કેવી ઝડપથી કિસાન હિત અને જનહિતના કામો થાય એ વડાપ્રધાનશ્રીએ દેશ અને દુનિયાને બતાવ્યું છે. તેમણે જ્ઞાન એટલે કે ગરીબ, અન્નદાતા, યુવા અને નારી શક્તિને વિકસિત ભારતના આધારસ્તંભ ગણાવીને કલ્યાણ યોજનાઓ બનાવી છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ ટેકનોલોજીના સમન્વયથી જન સુખાકારી વધારવાની અનેક પહેલો પણ કરી છે. પીએમ કિસાન સન્માન નિધિમાં અત્યાર સુધીમાં 19 સપ્તાહમાં દેશના કરોડો કિસાન પરિવારના બેંક ખાતામાં કરોડો રૂપિયા ડીબીટીથી જમા થયા છે.
ગુજરાતના 52 લાખથી વધુ ખેડૂતોના ખાતામાં પણ 1118 કરોડ રૂપિયા જમા થયા છે. શ્રી મોદી સાહેબના વિઝનરી નેતૃત્વમાં પાછલા 11 વર્ષમાં બીજથી બજાર સુધીના સુદીર્ઘ આયોજનથી ગુણવત્તાવાળા બિયારણ, શ્રેષ્ઠ બજાર સુલભતા સહિત સમગ્ર કૃષિને વ્યાપક પ્રોત્સાહન મળ્યું છે. 2013-14ની સરખામણીએ આ વર્ષના કૃષિ બજેટમાં 5 ગણો વધારો થયો છે. પાક ઉત્પાદકતામાં સુધારા માટે તેમના નેતૃત્વમાં 25 કરોડ સોઇલ હેલ્થ કાર્ડનું વિતરણ કરવામાં પણ આવ્યું છે. આ 11 વર્ષમાં આધુનિક સિંચાઈ અને ધિરાણની સરળતાથી લઈને ડિજિટલ માર્કેટ અને એગ્રીટેક ઇનોવેશન સુધી આખો દેશ સ્માર્ટ ખેતી અપનાવી રહ્યો છે. ડેરી, મત્સ્ય ઉદ્યોગ જેવી કૃષિ સંલગ્ન ક્ષેત્રો પણ વિકસ્યા છે અને ગ્રામીણ સમૃદ્ધિ તેમજ ક્લાઇમેટ સ્માર્ટ કૃષિને વેગ મળ્યો છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ મોદીએ જે કહેવું તે કરવુંની કાર્યપર સંસ્કૃતિ વિકસાવી. તેમણે આ વર્ષના બજેટમાં પીએમ ધન ધાન્ય કૃષિ યોજના શરૂ કરવાનું જે કમિટમેન્ટ કર્યું હતું તેને તાજેતરમાં જ મંજૂરી પણ આપી દીધી છે. આ યોજના અંતર્ગત રાજ્ય સાથે ભાગીદારીમાં દેશભરમાંથી ઓછી પ્રોડક્ટિવિટી વાળા 100 જિલ્લાઓને આવરી લેવાશે. પીએમ ધન ધાન્ય કૃષિ યોજનાથી પ્રોડક્ટિવિટી વધારવા, સિંચાઈ સહિતની સુવિધા વધારવા, ક્રેડિટ ઉપલબ્ધ કરાવવા જેવી સુવિધાઓ દેશના 2.25 કરોડ ખેડૂતોને ફાયદો થવાનો છે. એટલે કે જ્યાં જ્યાં ખેતી, જે જિલ્લામાં જ્યાં ખેતી ઓછી થાય છે, જમીન છે, ખેડૂત છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક પાણીની મુશ્કેલી હોય કે સિંચાઈ માટે જે મુશ્કેલી પડતી હોય એ બધી મુશ્કેલીમાંથી એને બહાર લાવવા માટે આ ખૂબ સારી યોજના દેશભરના જે 100 જિલ્લાઓ છે એને આવરી લઈને આ યોજના બનાવવામાં આવી છે. એનો લાભ ખેડૂતોને મળતો થવા જઈ રહ્યો છે. ત્યારે આપણા માટે ખૂબ લાભ, જેને પણ આ યોજનાનો જે જિલ્લાને લાભ મળે એનો પૂરેપૂરો લાભ રાજ્ય સરકાર સાથે લઈ અને ખેડૂત લેશે તો એમની જે જમીન છે એ વધુ ને વધુ પ્રોડક્ટિવિટી કરતી થઈ જાય. એના માટેનો વડાપ્રધાનશ્રીનો પ્રયત્ન અને એમાં આપણે એ સાકાર કરવા માટે આપણે સૌએ પણ એ પ્રયત્ન કરવો રહ્યો. બીજી એક મહત્વપૂર્ણ પ્રધાનમંત્રી કિસાન સંપદા યોજના માટે કુલ 6520 કરોડ ખર્ચની 2 દિવસ પહેલા જ મોદી સાહેબે મંજૂરી આપી છે. આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ 2047માં વિકસિત ભારતના નિર્માણનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. તેમાં પ્રાકૃતિક ખેતીને પણ પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. તેમના નેતૃત્વમાં મિલેટ અને પ્રાકૃતિક કૃષિ જેવી પરંપરાગત પદ્ધતિઓને પુનર્જીવિત કરવામાં આવી છે. આપણે પણ આજના સમયની માંગ એવી પ્રાકૃતિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વિવિધ પ્રકલ્પો અને સહાય યોજનાઓ શરૂ કરી છે. પ્રાકૃતિક ખેતીના શિક્ષણ અને સંશોધનને સમર્પિત ગુજરાત નેચરલ ફાર્મિંગ સાયન્સ યુનિવર્સિટી હાલોલમાં શરૂ કરાવી છે. પ્રાકૃતિક ખેતી કરવા ઈચ્છતા ખેડૂતોને પ્રેક્ટિકલ તાલીમ મળે તે માટે મોડેલ ફાર્મ પણ બનાવ્યા છે. પ્રાકૃતિક કૃષિના ઉત્પાદનના વેચાણને પ્રોત્સાહન આપવાની પણ વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે. આવા અનેક ખેડૂત હિતલક્ષી આયોજનથી આપણે વિકસિત ગુજરાત માટે વિકસિત ખેતીનું નિર્માણ પણ કરવું છે. આપણી પાસે આ જે વિઝનરી લીડર છે, વિઝનરી લીડર એટલે કે આજે જે પ્રમાણે અત્યારે પાણીની વ્યવસ્થા અને પાણીની વ્યવસ્થાની શું આયોજન થઈ શકે, અત્યારે જે પ્રમાણે આપણે પાણી વાપરી રહ્યા છે એ પાણી ભવિષ્યમાં પણ આપણને મળતું રહે એનું આજથી આયોજન માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ કર્યું છે. અને દરેક જિલ્લામાં અમૃત સરોવર, એટલે દરેક જિલ્લામાં 75 અમૃત સરોવર બનાવ્યા છે. અને ગુજરાત સરકાર પણ એની અંદર આ દરેકે દરેક તળાવ, નર્મદાના વધુ પાણી જ્યારે હોય ત્યારે એ નહેરમાં આવે તો એ ભરાઈ જાય એના માટેની કિલોમીટરની જે રેન્જ છે એ કાઢીને પણ આ યોજના તળાવો ભરાય એના માટેનું અમે આયોજન કરી રહ્યા છીએ. એટલે તમારા ત્યાં આવતા કોઈ પણ તળાવ હોય તો એ કેવી રીતે ભરાઈ જાય પાણીથી એનું આયોજન પણ આપણે કર્યું છે. પણ જે વિઝનરી લીડરની વાત કરું છું તો એમાં કેચ ધ રેન, એટલે કે વરસાદનું પાણી પણ ટીપે ટીપું આપણે કેવી રીતે સંગ્રહ કરી શકીએ અને સંગ્રહ ના કરી શકાય તો એ જમીનમાં કેવી રીતે ઉતારી શકાય એનું આયોજન આપણે બધાએ કરવાનું છે. અને એમાં ગુજરાત સરકાર તમારી સાથે છે. તમારે
ખર્ચો કરવાનો નથી, પણ તમારે આયોજન કરશો તો અમે દરેક ધારાસભ્યને પણ 50 લાખ રૂપિયા આના માટે આપ્યા છે કે જે તમારા ત્યાં આગળ આ પાણી જમીનમાં ઉતારવા માટેનું આયોજન કરી શકશે. આવા અનેક ખેડૂત હિતલક્ષી આયોજનથી આપણે વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ખેતીનું નિર્માણ કરવું છે. આપણે સૌ સાથે મળીને વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારતની યાત્રામાં ખેડૂતોને કેન્દ્ર સ્થાને રાખીને આગળ વધીએ એ જ અભ્યર્થના સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, આપના આ પ્રેરણાદાયી માર્ગદર્શન માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે સમય છે પીએમ કિસાન ઉત્સવ દિવસ નિમિત્તે અત્રે પધારેલા લાભાર્થીઓને વિવિધ યોજનાકીય સહાય અર્પણ કરવાનો. સાદર વિનંતી કરીએ છીએ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને કે આપના શુભ હસ્તે લાભાર્થીઓને સહાયનું વિતરણ કરશો. મંચ પર આમંત્રિત કરીએ છીએ પરમાર રેવાભાઈ ગુજરાભાઈ, ખેડબ્રહ્મા તાલુકાના ધોલી ગામના વતની છે. રેવાભાઈને વનબંધુ ટ્રેક્ટર યોજના અંતર્ગત ₹1 લાખની સહાય પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. ખેતીવાડી વિભાગની આ જે યોજના છે તે અંતર્ગત શૈલેષ કુમાર કેશાજી બિહોલા, જેઓ ગાંધીનગર પાલજના છે, તેમને સ્માર્ટફોન માટે ₹6000 પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. ગમાર રમેશભાઈ ઉદાભાઈ, જેઓ પોશીનાના ચંદ્રાનાના વતની છે, તેમને વનબંધુ ટ્રેક્ટર યોજના અંતર્ગત ₹1 લાખની સહાય પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. ત્યાર પછી ઠાકોર સગ્રામજી સોમાજી, રક્ષિત ખેતી હેઠળ નેટ હાઉસ સ્ટ્રક્ચર માટે તેમને ₹8,37,103ની સહાય પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. ઠાકોર સગ્રામજી સોમાજી જલુંદના વતની છે સગ્રામજીભાઈ, જેમને ₹8,37,103ની રક્ષિત ખેતી માટે સહાય પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. પટેલ ભરતભાઈ હીરાભાઈ, ચૌધરી કનુભાઈ હરિભાઈ, તેમને સ્માર્ટફોન માટે ₹6000ની સહાય પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. ખેતીવાડી વિભાગ તરફથી ખેડૂતોને સ્માર્ટફોન પેટે ₹6000ની સહાય આપવામાં આવે છે. પરેશભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ, દહેગામના પરેશકુમાર પટેલને સ્માર્ટફોન માટે ₹6000ની સહાય પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. અને પટેલ વિષ્ણુભાઈ ઈશ્વરભાઈ પાનસર કલોલ, તેમને પણ સ્માર્ટફોન માટે ₹6000ની સહાય પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. શૈલેષ કુમાર કેશાજી બિહોલા, તાલુકો ગાંધીનગર, ગામ પાલજ, તેમને સ્માર્ટફોન માટે ₹6000ની સહાય પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. શૈલેષ કુમાર બિહોલા. પ્રતિકાત્મક રૂપે આજના મંચ પરથી કેટલાક ખેડૂત મિત્રોને આ પ્રકારની સહાય આપવામાં આવી અને સાથે સાથે અન્ય ખેડૂતોને પણ વિવિધ કાર્યક્રમોમાં રાજ્ય સરકાર તરફથી મળવાપાત્ર સહાય ચૂકવવામાં આવી છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી. પીએમ કિસાન સન્માન નિધિનો 20મો હપ્તો આજે
સમગ્ર દેશના કિસાન ભાઈઓ બહેનોના ખાતામાં સીધો ચૂકવાશે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી આપણને હવે વર્ચ્યુઅલ जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन वंदन. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी. और इन योजनाओं पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म आइए देखते हैं. अपने आध्यात्मिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ विकास पथ पर अग्रसर काशी ने विकास की वो यात्रा देखी है जो पहले सभी के लिए कल्पना मात्र थी. चाहे श्री काशी विश्वनाथ धाम हो या रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, एंड टू एंड कनेक्टिविटी हो या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा समेत हर क्षेत्र का समग्र विकास, यहाँ हर ओर दिखता है एक ही प्रतिबिंब. वाराणसी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन और काशी के विकास का अथक संकल्प आज काशी वासियों के जीवन को आसान बना रहा है और काशी प्रगति की नित नई ऊंचाइयों को छू रही है. आज इस विकास यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वाराणसी को 2100 करोड़ से अधिक लागत की 50 से अधिक परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण से समृद्ध किया जा रहा है. काशी में यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए 269 करोड़ की लागत से वाराणसी भदोई मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण कार्य तथा 42 करोड़ की लागत से मोहन सराय अदलपुरा मार्ग पर रोड ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया गया है. इसके साथ ही अन्य सड़क परियोजनाओं के भी पूरे होने से अब सीमावर्ती जिलों से आवागमन की सुविधा में विस्तार होगा. हर घर जल के विजन के अनुरूप जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 130 करोड़ की लागत से 47 ग्रामीण पेयजल योजनाएं पूरी की गई हैं, जिससे 22,000 घरों में स्वच्छ जलापूर्ति संभव हो सकेगी तथा 1.5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे. BHU एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल में 73 करोड़ की लागत से रेडिएशन मशीनें, रोबोटिक सर्जरी यूनिट और CT स्कैन जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं की स्थापना से वाराणसी समेत अन्य जनपदों तथा सीमावर्ती राज्यों के मरीजों को जांच एवं उपचार में सहूलियत होगी. वाराणसी के उदीयमान भविष्य हेतु सार्वभौमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत में लगभग 8 करोड़ की लागत से 53 प्राथमिक विद्यालयों के पुनरुद्धार एवं मरम्मत का कार्य पूर्ण किया गया है, जिससे 7,000 छात्रों को गुणवत्ता परक शैक्षणिक सुविधा मिल सकेगी. यहाँ के पर्यटन स्थलों एवं धार्मिक गंतव्यों के समग्र विकास हेतु लगभग 30 करोड़ की लागत से जल शोधन, जीर्णोद्धार, निर्माण एवं पुनर्विकास के कार्य भी पूर्ण कराए गए हैं. इसके अतिरिक्त सिंथेटिक हॉकी टर्फ तथा विभिन्न अन्य परियोजनाओं की सौगात भी आज काशी को मिल रही है, जिससे समस्त जन को लाभ होगा. इसी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1600 करोड़ से अधिक मूल्य की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है. 881 करोड़ की लागत से वाराणसी शहर में स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन एवं अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य, 86 करोड़ की लागत से राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय का निर्माण कार्य, साथ ही लगभग 500 करोड़ की लागत से विभिन्न सड़कों एवं पुलों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य तथा नगर विकास से जुड़े कई कार्य किए जाएंगे, जिनमें पार्कों का पुनर्विकास, मल्टी लेवल पार्किंग, तालाब संरक्षण और अन्य कार्य शामिल हैं। ये है काशी का नवनिर्माण, संकल्प के साथ सिद्धि भी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी अब देश को दिशा दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। ये थी एक छटा सजती और संवरती काशी की। समृद्ध किसान विकसित भारत, इस युग्म को और मजबूती प्रदान करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के अंतर्गत 9.70 करोड़ से अधिक किसानों को 20,500 करोड़ से अधिक की धनराशि बटन दबाकर सीधे उनके खाते में हस्तांतरित करने की कृपा करें। बहुत जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार और कृतज्ञता हमारे किसान भाइयों की तरफ। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सीधे उनके खातों में जा रही है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आइए देखते हैं एक इसी पर आधारित शॉर्ट फिल्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में भारत में कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और गौरवशाली परिवर्तन की यात्रा बन चुकी है। किसानों को सक्षम, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने हर कदम पर किसानों का साथ दिया है। मिट्टी की उर्वरता को समझने से लेकर पानी की हर बूंद को बचाने तक, बीज और खाद से लेकर बाजार तक, कर्ज को आसान बनाने से लेकर ड्रोन जैसे आधुनिक उपकरणों को खेतों में उतारने तक। बीते दशक में हमने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। इसी संकल्प के तहत बीते 11 वर्षों में कृषि बजट 5 गुना बढ़ाया गया है ताकि किसानों को बेहतर सुविधाएं, तकनीक और समर्थन मिल सके। विकसित भारत का आधार सशक्त किसान, ये भारत सरकार का मूल मंत्र है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई। आज पीएम किसान विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजनाओं में से एक है। अब तक 3,70,000 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देश के अन्नदाताओं को दी जा चुकी है। कृषि और किसान कल्याण के लिए पिछले 11 वर्षों में सरकार ने सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई बल्कि खेतों में उतरकर किसान के साथ एक मजबूत रिश्ता भी जोड़ा है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो। गेहूं, धान, दलहन, तिलहन और कपास जैसी प्रमुख फसलों की रिकॉर्ड एमएसपी खरीद ने किसानों को उनकी मेहनत का सीधा और उचित मूल्य दिलाया। फसल बीमा भुगतान करके सरकार ने ये साबित किया है कि संकट के समय किसान अकेला नहीं है, सरकार उसकी ढाल बनकर खड़ी है। 10,000 किसान उत्पादक संगठन किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। वहीं कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से 1 लाख करोड़ की सहायता से फसल की कटाई उपरांत बुनियादी सुविधाओं के विकास से कृषि नए आयामों को छू रही है। पिछले 11 वर्षों में 14 लाख करोड़ की उर्वरक सब्सिडी से किसानों को सही समय और किफायती दामों पर खाद की आपूर्ति से खेती का मुनाफा बढ़ा है। देश भर में स्थापित प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र आज किसानों को खाद, समाधान, तकनीक और मार्गदर्शन एक ही स्थान पर उपलब्ध करा रहे हैं। सरकार की योजनाओं का ही परिणाम है कि देश में खाद्यान्न और बागवानी के क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। किसानों को समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त के तहत 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्मान राशि का सीधा हस्तांतरण हो रहा है। अन्नदाताओं का सम्मान, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके सदाशयता के लिए, किसानों के प्रति आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आप सब वह दृश्य भी देखेंगे जहां भविष्य की बुनियाद पर मील का एक पत्थर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संस्कारों की छाया में रखा जाएगा। जी हां, पिछले 2 वर्षों से लगातार काशी में काशी सांसद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती रही हैं। इस वर्ष भी ये प्रतियोगिताएं काशी में आयोजित होंगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं कि प्रतियोगिताओं से संबंधित वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन पोर्टल व क्यूआर कोड का अनावरण बटन दबाकर अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का काशी की प्रतिभा
बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज इस कार्यक्रम में भारत सरकार की एडिप व राष्ट्रीय वयोश्री योजना तथा हुडको व आईडीबीआई बैंक के CSR सेंसिटिव यानी CSR इंसेंटिव के अंतर्गत काशी के 2000 से अधिक दिव्यांगजनों को एलिम्को द्वारा विशेष डिजाइन किए गए सहायक उपकरण माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में प्रदान किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ लाभार्थियों को मैं मंच पर आमंत्रित करते हुए सादर अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इन्हें अपने कर कमलों से इनके सहायक उपकरण प्रदान कर इन्हें आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। सबसे पहले मंच पर आ रही हैं सुश्री बबली कुमारी। बबली कुमारी दृष्टि बाधित छात्रा हैं। इन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से लो विजन चश्मा प्रदान करेंगे, जिससे उसको उसकी शिक्षा और दीक्षा में कोई कठिनाई ना हो। इससे पहले वो ब्रेल किट के द्वारा अपनी पढ़ाई का कार्य किया करती थी, लेकिन इस चश्मे के माध्यम से यह कार्य उसके लिए और सरल हो जाएगा, दैनिक जीवन उसके लिए और सरल हो जाएगा। मंच पर बबली कुमारी को आशीर्वाद देते माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत स्नेह से उससे वार्ता करते, उससे समझते कि इस चश्मे के बाद उसे कैसी अनुभूति हो रही है। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। इनके बाद मंच पर आ रहे हैं श्री संतोष कुमार पांडे। श्री संतोष कुमार पांडे जी जो रग्बी व क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इन्हें स्पोर्ट्स व्हील चेयर प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से आशीर्वाद स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी। इस स्पोर्ट व्हील चेयर के माध्यम से संतोष कुमार जी अपने खेल को और बढ़ा पाएंगे और अच्छी तरह से खेल के क्षेत्र में अपना और देश का नाम रोशन करेंगे। श्री संतोष कुमार पांडे जी। इनके बाद मंच पर आएंगे श्री विकास कुमार पटेल। श्री विकास कुमार पटेल भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। इन्हें एक्टिव फोल्डिंग व्हील चेयर प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से माननीय प्रधानमंत्री जी। इस चेयर के माध्यम से इनके खेल को और इनके जीवन को दोनों को गति मिलेगी और दोनों में सरलता और सुगमता आएगी। इसके बाद वयोश्री, क्या बात है, बहुत जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और इसके बाद वयोश्री योजना के अंतर्गत मंच पर आ रहे हैं श्री किशुन जी। श्री किशुन जी इन्हें श्रवण यंत्र प्रदान करेंगे अपने कर कमलों से माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसमें कान की मशीन व वयोश्री किट है। इसके माध्यम से इनके लिए भी दैनिक जीवन सरल और सुगम होगा। उनसे पूछते, उनको बताते कि आप इससे सुनकर बताइएगा कैसा लग रहा है। और मंच पर इनके बाद आएंगी सीता कुमारी पाल। सीता कुमारी पाल जो पेशे से शिक्षिका हैं, इन्हें मोटराइज ट्राईसाइकिल प्रदान कर रहे हैं अपने कर कमलों से माननीय प्रधानमंत्री जी। इससे इनके कार्य को तो गति मिलेगी ही, आवागमन की सुविधा और सरल हो जाएगी इनके लिए। सीता कुमारी पाल, बहुत जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। बहुत जोर उद्घोष और सादर उन्हें स्थान ग्रहण करने का अनुरोध भी मैं करती हूं। स्वतंत्र भारत की गौरव गाथा जब भी पढ़ी या लिखी जाएगी तब वर्ष 2014 का काल सदैव सुनहरे अक्षरों से अंकित होगा। यही वह वर्ष जब देश की बागडोर एक ऐसे युग पुरुष ने संभाली और तब से आज तक अनेक उपलब्धियां और उनके द्वारा तमाम राष्ट्रहित में लिए गए निर्णय कालजयी साबित हुए। और इनमें एक और चमकता सितारा रहा ऑपरेशन सिंदूर, जिसने देश के आत्मसम्मान को पूरी दुनिया के सामने बरकरार रखा। सभी 142 करोड़ भारतवासी, हम सबको आप पर गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी। आप मां भारती की आन बान और शान है। हम सबकी जोरदार तालियों और उद्घोष के बीच मैं आपसे सादर अनुरोध करती हूं कि आज काशी के इस पावन भूमि पर सावन के इस पवित्र मास में
हम सबको अपना आशीर्वाद दे, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सावन के पावन महीने में आज हमके काशी के हमरे परिवार के लोगन से मिले का अवसर मिलल है। हम काशी के हर परिवारजन के प्रणाम करत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, पटना से हमारे साथ जुड़े कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, देश के अलग अलग हिस्सों में जुड़े हुए सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, गवर्नर श्री, मंत्रीगण, यूपी सरकार के मंत्रीगण, यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, सभी विधायक एवं जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, और विशेष रूप से काशी के मेरे मालिक जनता जनार्दन, आज हम काशी से देश भर के लाखों किसानों से जुड़े हुए हैं। सावन का महीना हो, काशी जैसा पवित्र स्थान हो और देश के किसानों के साथ जुड़ने का अवसर हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है।
मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। साथियों, इन दिनों जब काशी में गंगा जल लेकर जाते हुए शिव भक्तों की तस्वीरें जब देखने का अवसर मिल रहा है, दिव्य तस्वीरें, और खासकर सावन के पहले सोमवार को जब हमारे यादव बंधु बाबा का जलाभिषेक करने निकलते थे, गौरी केदारेश्वर से कंधे पर गंगा जल लेकर यादव बंधुओं का समूह, कितना मनोरम दृश्य होता है। डमरू की आवाज, गलियों में कोलाहल, एक अद्भुत भाव विश्व पैदा होता है। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि सावन के पवित्र महीने में बाबा विश्वनाथ और मार्कंडेय महादेव के दर्शन करूं, लेकिन मेरे वहां जाने से महादेव के भक्तों को असुविधा न हो, उनके दर्शन में बाधा न पड़े, इसलिए मैं आज यहीं से भोलेनाथ और मां गंगा को प्रणाम कर रहा हूं। हम सेवापुरी के ई मंच से बाबा काशी विश्वनाथ के प्रणाम करत है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साथियों, कुछ दिनों पहले मैं तमिलनाडु में था। मैं वहां 1000 साल पुराने एक ऐतिहासिक मंदिर गया था, गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर। ये मंदिर देश की शैव परंपरा का एक प्राचीन केंद्र है। ये मंदिर हमारे देश के महान और प्रसिद्ध महान राजा राजेंद्र चोल ने बनवाया था। राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत से गंगा जल मंगवाकर उत्तर को दक्षिण से जोड़ा था। 1000 साल पहले अपनी शिव भक्ति और शैव परंपरा के जरिए राजेंद्र चोल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घोष किया। आज काशी तमिल संगमम जैसे प्रयासों के जरिए हम उसे आगे बढ़ाने का एक नम्र प्रयास कर रहे हैं। और मैं जब अभी गंगईकोंडा चोलापुरम गया तो मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि 1000 साल बाद आपके आशीर्वाद से
मैं भी गंगा जल लेकर वहां गया था। मां गंगा के आशीर्वाद से बहुत ही पवित्र माहौल में वहां पूजा संपन्न हुई। गंगा जल से वहां जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, जीवन में ऐसे अवसर बहुत प्रेरणा देते हैं। देश की एकता की हर बात नई चेतना जगा देती है और तभी तो ऑपरेशन सिंदूर सफल होता है। $140 करोड़ देशवासियों की एकता ऑपरेशन सिंदूर की ताकत बन जाती है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर जवानों के पराक्रम का वो पल और आज किसानों को प्रणाम करने का अवसर। आज यहां एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। और जब काशी से धन जाता है ना, वो तो अपने आप प्रसाद बन जाता है। $21,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा। साथियों, आज यहां भी 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। बाबा के आशीर्वाद से काशी में विकास की अविरल धारा मां गंगा के साथ साथ आगे बढ़ रही है। मैं आप सभी को, देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले काशी में सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। यानी स्पर्धा के द्वारा स्किल डेवलपमेंट, स्वयं प्रयास से स्किल डेवलपमेंट, उसके अनेक प्रयोग आज काशी की भूमि में हो रहे हैं। आने वाले दिनों में काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता, सांसद रोजगार मेला समेत कई और आयोजन भी होने वाले हैं। मैं यहां सरकार के सभी मुलाजिमों को, सरकार के सभी अधिकारियों को भी सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं, ताकि वे जनभागीदारी से युवा पीढ़ी को जोड़ करके ऐसे अद्भुत कार्यक्रमों की रचना करते हैं और सफलतापूर्वक उसको आगे बढ़ाते हैं। इस काम में जुड़े हुए सभी अधिकारी भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जो ये प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं,
उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथियों, हमारी सरकार निरंतर किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। पहले की सरकारों में किसानों के नाम पर हुई एक घोषणा भी पूरी होना मुश्किल होता था, लेकिन भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। और यही देश का दुर्भाग्य है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ विरोधी मानसिकता वाले लोग ऐसी ही झूठी सच्चाई को लेकर के जी रहे हैं। ये सिर्फ किसानों से, देश के लोगों से झूठ बोल सकते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इतने वर्षों में कभी एक भी किस्त बंद हुई क्या? पीएम किसान सम्मान निधि बिना ब्रेक के जारी है। आज तक 4.25 लाख करोड़ रुपए, आंकड़ा याद रखना, 4.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। जरा आप मेरे साथ बोलेंगे कितने? 4.25 लाख करोड़। कितने? 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 और ये 4.25 लाख करोड़ कितने रुपये किसके खाते में जमा किए? किसके खाते में जमा किए? मेरे किसान भाई बहनों के खाते में जमा किए। यहां यूपी के भी करीब 2.5 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला है। यूपी में किसानों को इस योजना के 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, मेरी काशी के किसानों को भी करीब करीब 900 करोड़ रुपए मिले हैं। आपने ऐसा सांसद चुना कि आपके खाते में 900 करोड़ रुपया आया है। और इससे बड़ी बात, बिना किसी कट कमीशन के, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, सीधे ये पैसे किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और मोदी ने
ये परमानेंट व्यवस्था बना दी है। ना लीकेज होगी, न गरीब का हक छीना जाएगा। साथियों, मोदी के विकास का मंत्र है, जो जितना पिछड़ा उसे उतनी ज्यादा प्राथमिकता। जो जितना पिछड़ा उसे ज्यादा प्राथमिकता। इस महीने केंद्र सरकार ने एक और बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए किसानों के कल्याण के लिए, कृषि व्यवस्था के लिए, कृषि विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश के ऐसे जिले जो पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण विकास की राह में पिछड़ गए, पिछड़े रह गए, जो कृषि उत्पादन भी कम हो रहा है, जहां किसानों की आमदनी भी कम है, अरे कोई पूछने वाला नहीं था, उन जिलों पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का फोकस होगा। इससे यूपी के भी लाखों किसानों को फायदा होगा। साथियों, किसानों के जीवन में बदलाव के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए, खेती पर होने वाला खर्च कम करने के लिए एनडीए सरकार पूरी शक्ति से काम कर रही है, पूरी ताकत लगा रही है। हम बीज से बाजार तक किसानों के साथ खड़े हैं। खेतों तक पानी पहुंचे, इसके लिए देश में लाखों करोड़ रुपए की सिंचाई योजना चलाई जा रही है। साथियों, किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती मौसम की होती रही है। कभी ज्यादा बारिश हो गई, कभी ओला गिर गया, पाला पड़ गया। किसानों को इससे सुरक्षा देने के लिए पीएम फसल बीमा योजना शुरू हुई। इस योजना के तहत, यह आंकड़ा भी याद रखिए, इस बीमा योजना के तहत अब तक 2.25 लाख करोड़ रुपए, 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का क्लेम किसानों को दिया जा चुका है। बीमा के माध्यम से 2.25 लाख करोड़ रुपया, कितना बताएंगे? कितना? 2.25 लाख करोड़ रुपया। साथियों, हमारी सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि आपको आपकी फसल की सही कीमत मिले। इसके लिए फसलों की एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। धान और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों की एमएसपी भी बढ़ाई गई है। आपकी उपज सुरक्षित रहे, इसलिए सरकार देश में हजारों नए गोदाम भी बनवा रही है। भाइयों बहनों, हमारा जोर कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी है।
हम लखपति दीदी अभियान चला रहे हैं। हमारा लक्ष्य देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। 3 करोड़ लखपति दीदी। ये सपा वाले तो ये आंकड़ा सुनकर के ही साइकिल लेके भाग जाएंगे। अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी भी बन चुकी है। 3 करोड़ का लक्ष्य में से आधा काम पूरा कर लिया। 1.5 करोड़ गांव में काम करने वाली गरीब परिवार की, किसान परिवार की हमारी बहनें, 1.5 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन जाए, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। सरकार के ड्रोन दीदी अभियान ने भी लाखों बहनों की आय बढ़ाई है। साथियों, हमारी सरकार कृषि से जुड़ी आधुनिक रिसर्च को खेतों तक पहुंचाने में भी जुटी है। इसके लिए मई और जून के महीने में खास तौर पर विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया गया। लैब से लैंड के मंत्र के साथ 1.25 करोड़ से अधिक किसानों से सीधा संवाद किया गया। हमारे देश में माना गया है और यह व्यवस्था भी है कि कृषि ये राज्य का विषय है और सही भी है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार को लगा, एनडीए सरकार को लगा, मोदी सरकार को लगा कि भले विषय राज्य का हो, राज्य करे, कर पाए न कर पाए, बहुत से राज्य जो नहीं कर पाते हैं, तो हमने तय किया कि हम खुद भी कुछ करेंगे और करोड़ों किसानों के साथ सीधा संवाद किया। साथियों, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आप सभी तक निरंतर पहुंचता रहे, इस दिशा में आज मुझे आपके साथ एक अहम जानकारी साझा करनी है और उसमें मुझे आपकी मदद भी चाहिए। यहां बैठे हुए लोगों की भी मदद चाहिए। आपको पता है, जनधन योजना के तहत देश में 55 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले गए। जिनको कभी बैंक का दरवाजा देखने का सौभाग्य नहीं मिला था, ऐसे 55 करोड़ लोगों के खाते, ये मोदी को जब से आपने काम करने का अवसर दिया ना, मैं ये काम कर रहा था। 55 करोड़। अब इस योजना को हाल ही में 10 साल पूरे हुए हैं। अब बैंकिंग क्षेत्र का कुछ नियम है। वो नियम ये कहते हैं कि 10 साल बाद बैंक खातों का दोबारा से केवाईसी करना जरूरी होता है। एक प्रक्रिया पूरी करनी होती है। अब आप बैंक में जाएं, करें या न करें, पहले सब आपको करना होता है। अब मैंने थोड़ा आपका भार कम करने का बीड़ा उठाया है, तो मैंने बैंक वालों से कहा कि लोग आए, केवाईसी करें, अच्छी बात है। हमें नागरिकों को हमेशा जागृत रखना चाहिए, लेकिन हम क्या एक अभियान चला सकते हैं? मैं आज रिजर्व बैंक का, हमारे देश की सभी बैंकों का
बैंक के सभी कर्ता धर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। आज उन्होंने एक ऐसा काम उठाया है जो हमें गर्व से भर देता है। बैंक के लोग इस 10 करोड़ लोगों को, अरे 10 साल के बाद ये 55 करोड़ लोग अपना फिर से रिव्यू करें, इसलिए केवाईसी जो करना है, इस काम को पूरा करने के लिए 1 जुलाई से देश भर में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। हमारे बैंक स्वयं हर ग्राम पंचायत तक पहुंच रहे हैं, वहां पर जाकर के मेला लगाते हैं। अब तक ऐसी करीब 1 लाख ग्राम पंचायत में बैंक अपने कैंप, अपना मेला लगा चुके हैं। लाखों लोगों ने दोबारा अपना केवाईसी भी करा लिया है और ये अभियान आगे भी चलने वाला है। मैं ऐसे हर साथी जिसका जनधन खाता है उससे आग्रह करूंगा कि वो फिर से अपना केवाईसी जरूर करा ले। साथियों, ग्राम पंचायतों में बैंक जो स्पेशल कैंप लगा रहे हैं, अभी भी लाखों पंचायतों का काम जारी है। मैं समझता हूं कि इन कैंप का फायदा उठाना चाहिए और उसके कई फायदे हैं। एक और फायदा भी है, इन कैंपों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ऐसी अनेक योजनाओं का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। और ये बीमा तो ऐसा है कि एक चाय के खर्चे से भी कम खर्चा लग जाता है। ये योजनाएं आपकी बहुत मदद करती है। इसलिए बैंकों ने जो जितना बड़ा अभियान चलाया है, आप इसका बहुत फायदा लीजिए। पूरे देश के लोगों से मैं कहता हूं, आप इन कैंपों में जरूर जाइए। अब अगर आप अब तक इन योजनाओं से नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपने जनधन खाते का केवाईसी भी कराइए। मैं भाजपा के और एनडीए के सभी प्रतिनिधियों से कहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान के प्रति जागरूक करें। बैंकों से बात करें कब कैंप कहां लगने वाला है, वो क्या मदद हम कर सकते हैं। हम सामने से होकर बैंकों के इतने बड़े काम में हाथ बटाएं, उनको मदद करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जहां भी कैंप लगता है उस इलाके के लोगों को इस अभियान से जोड़े। साथियों, आज महादेव की नगरी में विकास और जन कल्याण के इतने काम हुए। शिव का अर्थ ही होता है, शिव का मतलब ही है कल्याण। लेकिन शिव का एक रूप और भी है। शिव का एक रूप तो कल्याण है, शिव का दूसरा रूप है रुद्र रूप। सामने जब आतंक और अन्याय होता है तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। लेकिन भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। मैं मेरे काशी के मालिकों से पूछना चाहता हूं, भारत की ताकत से आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? ऑपरेशन सिंदूर से गर्व होता है कि नहीं होता है? आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने का आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? साथियों, आपने वो तस्वीरें देखी होगी कैसे हमारे ड्रोन्स, हमारे मिसाइल्स ने सटीक वार करके आतंक के हेडक्वार्टर्स को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस तो आज भी आईसीयू में पड़े हैं। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। साथियों, कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? क्या सिंदूर को तमाशा कोई कह सकता है क्या? हमारी सेना का पराक्रम और बहनों के सिंदूर का बदला तमाशा कहने की ये हिम्मत, ये निर्लज्जता, भाइयों बहनों, वोट बैंक और तुष्टीकरण की इस राजनीति में ये समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। ये सपा के नेता संसद में कह रहे थे, पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा? अब बताइए, क्या उनको फोन करूं क्या सपा वालों को, मारूं क्या ना मारूं? कोई मुझे बताए भाई, सामान्य बुद्धि से बताए, क्या आतंकवादियों को मारने के लिए भी क्या इंतजार करना चाहिए क्या? क्या उन्हें भागने का मौका देना था क्या? ये वही लोग हैं जो यूपी में जब सत्ता में थे तब आतंकवादियों को क्लीन चिट देते थे, बम धमाके करने वाले आतंकियों से मुकदमे वापस लेते थे। अब उन्हें आतंकवादियों के मारे जाने पर परेशानी हो रही है। इन्हें ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर परेशानी हो रही है। मैं इन लोगों को काशी की धरती से कहना चाहता हूं, ये नया भारत है। ये नया भारत
भोलेनाथ को भी पूजता है और देश के दुश्मनों के सामने काल भैरव भी बन जाता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी स्वदेशी मिसाइलें, स्वदेशी ड्रोन्स, इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की ताकत को साबित किया है। खासकर हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें, इनकी दहशत भारत के हर दुश्मन के भीतर भर गई है। पाकिस्तान में कहीं यूं ही ब्रह्मोस आवाज आ जाए ना तो नींद नहीं आती। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं यूपी का सांसद हूं। यूपी के सांसद के नाते मुझे खुशी है कि वो ब्रह्मोस मिसाइलें हमारे यूपी में भी बनेगी। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में भी कई बड़ी डिफेंस कंपनियां अपने प्लांट लगा रही है। आने वाले समय में यूपी में बने हथियार, हिंदुस्तान के हर भाग में बने हथियार भारतीय सेनाओं की ताकत बनेंगे। मुझे साथियों बताइए, जब ये आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति की बात सुनते हैं, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? जरा पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके बताइए, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? गर्व होता है कि नहीं होता है? बोले हर हर महादेव। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो यूपी में बनी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देगी। साथियों, आज यूपी इतनी तेज गति से औद्योगिक विकास कर रहा है। देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहां निवेश कर रही हैं। इसके पीछे भाजपा सरकार की विकासपरक नीतियों की बड़ी भूमिका है। सपा के समय में यूपी में अपराधी बेखौफ थे और निवेशक यहां आने से भी डरते थे, लेकिन भाजपा की सरकार में अपराधी में खौफ है और निवेशक यूपी के भविष्य में भरोसा देख रहे हैं। मैं विकास की इस रफ्तार के लिए यूपी सरकार को बधाई देता हूं। साथियों, मुझे संतोष है कि काशी में विकास का महायज्ञ लगातार जारी है। आज शुरू हुए रेल ओवरब्रिज, जल जीवन मिशन से जुड़े प्रोजेक्ट, काशी के स्कूलों का नवनिर्माण कार्य, होम्योपैथिक कॉलेज का निर्माण, मुंशी प्रेमचंद की विरासत को सहेजना, ये सारे काम भव्य काशी, दिव्य काशी, समृद्ध काशी और मेरी काशी के निर्माण को गति देंगे। यहां सेवापुरी में आना भी सौभाग्य से ही होता है। ये मां कालका देवी की ड्योढ़ी है। मैं यहां से मां कालका के चरणों में वंदन करता हूं।
मुझे खुशी है कि मां कालका धाम का हमारी सरकार ने सुंदरीकरण कर उसे और भव्य बना दिया है। मंदिर तक आना जाना भी आसान हो गया है। सेवापुरी का इतिहास क्रांति का इतिहास रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में यहां के अनेकों लोगों ने भागीदारी की थी। यही वो सेवापुरी है जहां महात्मा गांधी की कल्पना साकार हुई। यहां घर घर महिला पुरुष के हाथों में चरखा हुआ करता था। और सहयोग देखिए, अब चांदपुर से भदोई रोड जैसे प्रोजेक्ट से काशी के बुनकरों के साथ भदोही के बुनकर भी जुड़ रहे हैं। इसका लाभ बनारसी सिल्क के बुनकरों को भी होगा और भदोही के कारीगरों को भी होगा। साथियों, काशी बौद्धिक जनों की नगरी है। आज जब हम आर्थिक प्रगति की बात कर रहे हैं तो मैं आपका ध्यान वैश्विक हालातों पर भी ले जाना चाहता हूं। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है। अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन देश के नागरिक के रूप में भी हमारे कुछ दायित्व है। और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए, दूसरे को कहते रहना चाहिए। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा। और वो है, हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू से तोलेंगे? मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए वह स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। हम संकल्प लें कि हम
मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही बढ़ावा देंगे। हमारे घर में जो कुछ भी नया सामान आएगा, मैं नए सामान की बात कर रहा हूं, हमारे घर में जो भी नया सामान आएगा वो स्वदेशी ही होगा। ये जिम्मेदारी हर देशवासी को लेनी होगी। और मैं आज मेरे व्यापार जगत के भाई बहनों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं। मैं मेरे दुकानदार भाई बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, जब दुनिया इस प्रकार से अस्थिरता के माहौल से गुजर रही है, तब हम भी, चाहे व्यापार हो, छोटी दुकान हो, कारोबार करते हो, अब हम हमारे यहां से सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। साथियों, ये स्वदेशी माल बेचने का संकल्प भी देश की सच्ची सेवा होगा। आने वाले महीने त्योहारों के महीने हैं, दिवाली आएगी, बाद में शादियों के समय आएगा। हर पल अब स्वदेशी ही खरीदेंगे। मैंने जब देशवासियों को कहा था मेड इन इंडिया, अब विदेशों में जाकर के शादियां कर करके देश का धन मत लुटाओ। और मुझे खुशी है, कई नौजवान मुझे चिट्ठी लिखते थे कि हमारा परिवार तो विदेश में शादी करना तय किया था, लेकिन आपकी बात सुन करके अब हमने वहां का सारा कैंसिल कर दिया, थोड़ा खर्चा भी हो गया, लेकिन अब हम भारत में ही शादी करेंगे। हमारे यहां भी बहुत अच्छे स्थान है जहां शादी ब्याह हो सकता है। हर बात में स्वदेशी का भाव आने वाले दिनों में हमारा भविष्य तय करने वाला है दोस्तों। और ये महात्मा गांधी को भी बड़ी श्रद्धांजलि होगी। साथियों, सबके प्रयास से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। एक बार फिर आपको आज के विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं और भविष्य में वोकल फॉर लोकल, खरीदेंगे तो स्वदेशी खरीदेंगे, घर सजाएंगे तो स्वदेशी से सजाएंगे, जिंदगी बढ़ाएंगे तो स्वदेशी से बढ़ाएंगे। इस मंत्र को लेकर के चल पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए।